हम पढ़ेंगे नंबर्स 9 चैप्टर 10 चैप्टर। गिनती की पुस्तक 9 अध्याय 10 अध्याय। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, सच्चाई का सामना कराइए हमको, झूठ को पर्दाफाश कीजिए। जहाँ जहाँ हमारे कोई भी जीवन के हिस्से में झूठ राज्य कर रहा है तो खुदा उसको टक्कर लगाइए और उसका फाउंडेशन ब्रेक कीजिए। हमको सच्चाई के ऊपर उठा लीजिए और हमें बचा लीजिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। नंबर्स 9 चैप्टर फर्स्ट वर्ड से पढ़ेंगे। Introduction. The Passover enjoined a second Passover. A cloud guided the Israelites. And the Lord spake unto Moses in the wilderness of Sinai in the first month of the second year after they were come out of the land of Egypt, saying, Let the children of Israel also keep the Passover at his appointed season. In the 14th day of this month at even, ye shall keep it in his appointed season, according to all the rites of it, and according to all the ceremonies thereof shall ye keep it. And Moses spake unto the children of Israel that they should keep the Passover, and they kept the Passover on the 14th day of the first month at even in the wilderness of Sinai. According to all that the Lord commanded Moses, so did the children of Israel. And there were certain men who were defiled by the dead body of a man, that they could not keep the Passover on that day, and they came before Moses and before Aaron on that day. And those men said unto him, We are defiled by the dead body of a man, wherefore are we kept back, that we may not offer an offering of the Lord in his appointed season among the children of Israel. And Moses said unto them, Stand still, and I will hear what the Lord will command concerning you. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, saying, If any man of you or of your posterity shall be unclean by reason of a dead body, or be in a journey afar off, yet he shall keep the Passover unto the Lord the 14th day of the second month. At even they shall keep it and eat it with unleavened bread and bitter herbs. They shall leave none of it unto the morning, nor break any bone of it. According to all the ordinances of the Passover, they shall keep it. But the man that is clean and is not in a journey, and forbeareth to keep the Passover, even the same soul shall be cut off from among his people, because he brought not the offering of the Lord in his appointed season. That man shall bear his sin. And if a stranger shall sojourn among you, and will keep the Passover unto the Lord, according to the ordinance of the Passover, and according to the manner thereof, so shall he do. Ye shall have one ordinance, both for the stranger and for him that was born in the land. And on the day that the tabernacle was reared up, the cloud covered the tabernacle, namely the tent of the testimony, and at even there was upon the tabernacle as it were the appearance of fire until the morning. So it was always the cloud covered it by day, and the appearance of fire by night. And when the cloud was taken up from the tabernacle, then after that the children of Israel journeyed, and in the place where the cloud abode, there the children of Israel pitched their tents. At the commandment of the Lord the children of Israel journeyed, and at the commandment of the Lord they pitched. As long as the cloud abode upon the tabernacle, they rested in their tents. And when the cloud tarried long upon the tabernacle many days, then the children of Israel kept the charge of the Lord and journeyed not. And so it was,
When the cloud was a few days upon the tabernacle, according to the commandment of the Lord, they abode in their tents, and according to the commandment of the Lord, they journeyed. And so it was when the cloud abode from even unto the morning, and that the cloud was taken up in the morning, then they journeyed, whether it was by day or by night, that the cloud was taken up they journeyed, or whether it were 2 days or a month or a year, that the cloud tarried upon the tabernacle, remaining thereon. The children of Israel abode in their tents and journeyed not, but when it was taken up, they journeyed. At the commandment of the Lord, they rested in the tents, and at the commandment of the Lord, they journeyed. They kept the charge of the Lord at the commandments of the Lord by the hand of Moses. Chapter 10. The use of the silver trumpets. The Israelites go from Sinai to Paran. Moses' blessing. First verse. And the Lord spake unto Moses, saying, Make thee 2 trumpets of silver, of a whole piece shalt thou make them, and that thou mayest use them for the calling of the assembly, for the journeying of the camps. And when they shall blow with them, all the assembly shall assemble themselves to thee at the door of the tabernacle of the congregation, and if they blow but with 1 trumpet, then the princes which are heads of thousands of Israel shall gather themselves unto thee. When ye blow an alarm, then the camps that lie on the east parts shall go forward. When ye blow an alarm the second time, then the camps that lie on the south side shall take their journey. They shall blow an alarm for their journeys. But when the congregation is to be gathered together, ye shall blow, but ye shall not sound an alarm. And the sons of Aaron the priest shall blow with the trumpets, and they shall be to you for an ordinance forever throughout your generations. And if ye go to war in your land against the enemy that oppresseth you, then ye shall blow an alarm with the trumpets, and ye shall be remembered before the Lord your God, and ye shall be saved from your enemies. And in the day of your gladness, and in your solemn days, and in the beginnings of your months, ye shall blow with the trumpets over your burnt offerings, and over the sacrifices of your peace offerings, that they may be to you for a memorial before your God. I am the Lord your God. And it came to pass on the 20th day of the 2nd month, in the 2nd year, that the cloud was taken up from off the tabernacle of the testimony. And the children of Israel took their journeys out of the wilderness of Sinai, and the cloud rested in the wilderness of Paran. And they first took their journey according to the commandment of the Lord by the hand of Moses. In the first place went the standard of the camp of the children of Judah according to their armies, and over his host was Nahshon the son of Amminadab, and over the host of the tribe of the children of Issachar was Nathaniel the son of Zuar, and over the host of the tribe of the children of Zebulun, and Eliab the son of Helon. And the tabernacle was taken down, and the sons of Gershon and the sons of Merari set forward, bearing the tabernacle. And the standard of the camp of Reuben set forward according to their armies, and over his host was Elizur the son of Shedeur. And over the host of the tribe of the children of Simeon was Shelomiel the son of Zurishaddai. And over the host of the tribe of the children of Gad was Eliasaph the son of Deuel. And the Kohathites set forward, bearing the sanctuary, and the other did set up the tabernacle against they came. And the standard of the camp of the children of Ephraim set forward according to their armies, and over his host was Elishama the son of Ammihud, and over the host of the tribe of the children of Manasseh
was Gamaliel the son of Pedazur, and over the host of the tribe of the children of Benjamin was Abidan the son of Gideoni. And the standard of the camp of the children of Dan set forward, which was the rear ward of all the camps throughout their hosts, and over his host was Ahiezer the son of Ammishaddai, and over the host of the tribe of the children of Asher was Pagiel the son of Okran, and over the host of the tribe of the children of Naphtali was Ahira the son of Elnan. Thus were the journeyings of the children of Israel according to their armies when they set forward. And Moses said unto Hobab the son of Reguel, the Midianite, Moses' father-in-law, we are journeying unto the place of which the Lord said, I will give it you. Come thou with us, and we will do thee good, for the Lord hath spoken good concerning Israel. And he said unto him, I will not go, but I will depart to mine own land and to my kindred. And he said, Leave us not, I pray thee, for as much as thou knowest how we are to encamp in the wilderness, and thou mayest be to us instead of eyes. And it shall be, if thou go with us, yea, it shall be, that what goodness the Lord shall do unto us, the same will we do unto thee. And they departed from the mount of the Lord 3 days' journey, and the ark of the covenant of the Lord went before them in the 3 days' journey to search out a resting place for them. And the cloud of the Lord was upon them by day when they went out of the camp. And it came to pass, when the ark set forward, that Moses said, Rise up, Lord, and let thine enemies be scattered, and let them that hate thee flee before thee. And when it rested, he said, Return, O Lord, unto the many thousands of Israel. हम पढ़ेंगे निर्गमन 9 अध्याय। दूसरी बार फसह का मनाया जाना। इसलिए कि मिस्र देश से निकलने के दूसरे वर्ष के पहले महीने में यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा, इस्राएली फसह नमक पर्व को उसके नियत समय पर मनाया करे, अर्थात इसी महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय तुम लोग उसे सब विधियों और नियमों के अनुसार मानना। तब मूसा ने इस्राएलियों से फसह मनाने के लिए कह दिया, और उन्होंने पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय सीनै के जंगल में फसह को मनाया। और जो जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इस्राएलियों ने किया। परंतु कुछ लोग एक मनुष्य के शव के द्वारा अशुद्ध होने के कारण उस दिन फसह को न मना सके। वे उसी दिन मूसा और हारून के समीप जाकर मूसा से कहने लगे, हम लोग एक मनुष्य के शव के कारण अशुद्ध हैं, परंतु हम क्यों रुके रहे और इस्राएलियों के संग यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर क्यों न चढ़ाए। मूसा ने उनसे कहा, ठहरे रहो, मैं सुन लूं कि यहोवा तुम्हारे विषय में क्या आज्ञा देता है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे कि चाहे तुम लोग, चाहे तुम्हारे वंश में से कि कोई भी किसी लोथ के कारण अशुद्ध हो या दूर की यात्रा पर हो, तो भी वह यहोवा के लिए फसह को माने। वे उसे दूसरे महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय मनाएं, और फसह के बलि पशु के मांस को अखमरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रख छोड़े और न उसकी कोई हड्डी तोड़े। वे उस पर्व को फसह की सारी विधियों के अनुसार मनाए। परंतु जो मनुष्य शुद्ध हो और यात्रा पर न हो, परंतु फसह के पर्व को न माने, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। उस मनुष्य को यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर न ले आने के कारण अपने पाप का बोझ उठाना पड़ेगा। यदि कोई परदेशी तुम्हारे
साथ रहकर चाहे कि यहोवा के लिए फसह मनाए तो वह उसी विधि और नियम के अनुसार उसको माने। देशी और परदेशी दोनों के लिए तुम्हारी एक ही विधि हो। निवास स्थान पर अग्निमय बादल। जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। नित्य ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात दिन को बादल छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। और जब जब वह बादल तंबू पर से उठ जाता तब इस्राएली प्रस्थान करते थे, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वही इस्राएली अपने डेरे खड़े करते थे। यहोवा की आज्ञा से इस्राएली प्रस्थान करते थे और यहोवा ही की आज्ञा से वे डेरे खड़े भी करते थे। और जितने दिन तक वह बादल निवास पर ठहरा रहता उतने दिन तक वे डेरे डाले पड़े रहते थे। जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता था तब भी इस्राएली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते थे। कभी कभी वह बादल थोड़े ही दिन तक निवास पर रहता और तब भी वे यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे, और फिर यहोवा की आज्ञा ही से वह प्रस्थान करते थे। और कभी कभी बादल केवल संध्या से भोर तक रहता और जब वह भोर को उठ जाता था तब वे प्रस्थान करते थे। और यदि वह रात दिन बराबर रहता तो जब बादल उठ जाता तब ही वे प्रस्थान करते थे। वह बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर, जब तक निवास पर ठहरा रहता तब तक इस्राएली अपने डेरों में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे। परंतु जब वह उठ जाता तब वे प्रस्थान करते थे। यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते और यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे। जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था उसको वे माना करते थे। चांदी की 2 तुरहिया 10 अध्याय पहले वचन से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की 2 तुरहिया गढ़े के बनाई जाए तो उनको मंडली के बुलाने और छावनियों के प्रस्थान करने में काम में लाना। और जब वे दोनों फूंकी जाए तब सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। परंतु यदि एक ही तुरही फूंकी जाए तो प्रधान लोग जो इस्राएल के हजारों के मुख्य पुरुष हैं तेरे पास इकट्ठे हो जाए। जब तुम लोग सांस बांध कर फूंको तो पूर्व दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो, और जब तुम दूसरी बार सांस बांधकर फूंको तब दक्षिण दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो। उनके प्रस्थान करने के लिए वे सांस बांधकर फूंके। और जब लोगों को इकट्ठा करके सभा करनी हो तब भी फूंकना, परंतु सांस बांधकर नहीं। और हारून के पुत्र जो याजक है वे उन तुरहियों को फूंका करे। यह बात तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि रहे। और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो तब तुरहियों को सांस बांधकर फूंकना। तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा और तुम अपने शत्रुओं में बचाए जाओगे। अपने आनंद के दिन में और अपने नियत पर्वों में और महीनों के आदि में अपने होम बलियों और मेल बलियों के साथ उन तुरहियों को फूंकना। इससे तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारे स्मरण आएगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इस्राएलियों का सीनाई से प्रस्थान। दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन को बादल साक्षी के निवास पर से उठ गया। तब इस्राएली सीनाई के जंगल से प्रस्थान करके निकले और बादल पारान नामक जंगल में ठहर गया। उनका प्रस्थान यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी आरंभ हुआ। और सबसे पहले यहूदियों की छावनी के झंडे का प्रस्थान हुआ और वे दल बांधकर चले। और उनका सेनापति अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन था। और इस्साकारियों के गोत्र का सेनापति सुआर के पुत्र नतनेल था। और जबूलूनियों के गोत्र का सेनापति हेलोन का पुत्र एलीआब था। तब निवास उतारा गया और गेरशोनियों और मरारियों ने जो निवास को उठाते थे प्रस्थान किया। फिर रूबेन की छावनी के झंडे का कुछ हुआ और वे भी दल बनाकर चले। और उनका सेनापति शदेऊर का पुत्र
एलीशूर था और शिमोनियों के गोत्र का सेनापति सूरीशद्दै का पुत्र शलूमीएल था और गादियों के गोत्र का सेनापति दूएल का पुत्र एलियासाप था। तब कहातियों ने पवित्र वस्तुओं को उठाए हुए प्रस्थान किया और उनके पहुंचने तक गेर्शोनियों और मरारियों ने निवास को खड़ा कर दिया। फिर अप्रेमियों के छावनी के झंडे का कूच हुआ और वे भी दल बनाकर चले और उनका सेनापति अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा था और मनश्शेइयों के गोत्र का सेनापति पदासूर का पुत्र गमलीएल था और बिन्यामीनियों के गोत्र का सेनापति गिदोनी का पुत्र अबीदान था। फिर दानियों की छावनी जो सब छावनियों के पीछे थी उसके झंडे का प्रस्थान हुआ और वे भी दल बनाकर चले और उनका सेनापति अम्मीशद्दै का पुत्र अखियाजर था और अशेरियों के गोत्र का सेनापति उक्रांत का पुत्र पजीएल था और नप्तालियों के गोत्र का सेनापति एनान का पुत्र अहीरा था। इस्राएली इसी प्रकार अपने अपने दलों के अनुसार प्रस्थान करते और आगे बढ़ा करते थे। मूसा ने अपने ससुर रूएल मिद्यानी के पुत्र होबाब से कहा, हम लोग उस स्थान की यात्रा करते हैं जिसके विषय में यहोवा ने कहा है कि मैं उसे तुमको दूंगा, इसलिए तू भी हमारे संग चल और हम तेरी भलाई करेंगे, क्योंकि यहोवा ने इसराइल के विषय में भला ही कहा है। होबाब ने उसे उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने देश और कुटुंबियों में लौट जाऊंगा। फिर मूसा ने कहा, हमको न छोड़, क्योंकि हमें जंगल में कहाँ कहाँ डेरा खड़ा करना चाहिए, यह तुझे ही मालूम है। तू हमारे लिए आंखों का काम देना, और यदि तू हमारे संग चले तो निश्चय जो भलाई यहोवा हमसे करेगा उसी के अनुसार हम भी तुझसे वैसा ही करेंगे। लोगों का प्रस्थान 23 वचन से आगे। फिर इस्राएलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की और उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। और जब वे छावनी के स्थान से प्रस्थान करते थे तब दिन भर यहोवा का बादल उनके ऊपर छाया रहता था, और जब जब संदूक का प्रस्थान होता था तब तब मूसा यह कहा करता था, हे यहोवा उठ और तेरे शत्रु तितर बितर हो जाए और तेरे बैरी तेरे सामने से भाग जाए। और जब जब वह ठहर जाता था तब मूसा कहा करता था, हे यहोवा हजारों हजारों इसराइलियों में लौट कर आ जा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इन वचनों में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, सच्चाई का हमें सामना कराइए परमेश्वर, झूठ को पर्दाफाश कर दीजिए और उसका नींव हमारे अंदर से फोड़ कर पिता ख़त्म कर दीजिए, उसको हमारे अंदर रुकने मत दीजिए और सच्चाई का नींव हम में भरते जाने दीजिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हमें फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। टू इयर्स बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। एक्ट्स 23 चैप्टर 11 वर्स से 21 वर्स, सैम्स 52 चैप्टर्स, 53 चैप्टर, 54 चैप्टर। प्रेरितों के काम 23 अध्याय 11 वचन से 21 वचन। भजन संहिता 52 अध्याय, 53 अध्याय, 54 अध्याय हम अकेले में व्यक्तिगत समय में इसे बैठकर पढ़ना है और इससे परमेश्वर का आत्मा हमारे ध्यान में जो हमको सुधार लाने के लिए चाहिए वो बातों को लेकर आ सकता है। वचन के द्वारा वो हमको गहरा एक संदेश, एक मैसेज दे सकता है जिसके कारण हमारा जीवन बदल जाएगा। ऐसा कोई भी बहुत बढ़िया काम परमेश्वर का आत्मा हम में कर सकता है अकेले में, पर्सनल टाइम, व्यक्तिगत समय में जब हम इसे पढ़ेंगे तो निश्चित यही करना है कि हमने परमेश्वर के आत्मा से सीखना है। बाकी आप जैसा इसे पढ़ना चाहो वैसे अपने तरीके से भी इसे पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने भी हमारी तरह अकेले में बैठकर पढ़ना है, अपने तरीके से भी आप इसे पढ़ सकते हो। सिर्फ परमेश्वर के आत्मा ने ही हमको सिखाना है, ये निश्चित करना है और निश्चित परमेश्वर के आत्मा का हमने लाभ लेना है ऐसे बाइबल रीडिंग के सेशंस में से।
प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।